Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. As you all know that we are discussing chapter number 21, that is biochemistry these days. And today we are going to have lecture number 7 part 2. That is, we are going to talk about amino acid again, but in this lecture we will talk about RNA, its structure, functions, and the difference between DNA and RNA. So kindly have a look. As you all know that the nucleic acids are the polymers of nucleotides, and they are located uh, within the nuclei of a cell. Nucleic acids are the hereditary determinants of living organisms, and their elemental composition is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. I am not explaining these outlines because I have already explained these in detail in the last lecture. So this is for the sake of revision. Now, we did discuss that there are two types of nucleic acids basically. One is DNA deoxyribonucleic acid that we have already discussed in lecture number 7, part 1. And today we are going to discuss in detail about ribonucleic acid, that is RNA. Dear students, you should know that ribonucleic acids are RNA. Just like DNA is a long unbranched macromolecule consisting of nucleotides, but इसके nucleotides को आप कहते हैं ribonucleotides. Joined by 3' to 5', this is a sequence through the phosphodiester linkage. So again, just like DNA, RNA is a polymer of nucleotides, but its nucleotides are ribonucleotides. जबकि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते थे. इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो 3' से 5' होती है, एंड द बॉन्ड्स present in this polymer is phosphodiester bond. And the number of ribonucleotides in RNA ranges from as few as 75 to many thousands. Now, talking about the structure of RNA, you should know that RNA structure is similar to DNA. Both are sugar phosphate polymers and both have nitrogen containing bases attached, but there are three basic differences between DNA and RNA. Number one, as I have already explained, कि RNA और DNA दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा. वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, वन इज़ 5 कार्बन शुगर, दैट इज़ राइबोज, एंड द वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप. ये 3 कंपोनेंट्स हैं. तो आरएनए और डीएनए दोनों की न्यूक्लियोटाइड्स में ये 3 कंपोनेंट्स होंगे. बट व्हाट आर द डिफरेंसेस? द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज़ दैट द शुगर मॉलिक्यूल which is used in the nucleotides of DNA is deoxyribosed sugar, whereas the sugar used in case of RNA is a ribose sugar. इनका डिफरेंस भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है. सो वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज RNA कंटेन्स अ डिफरेंट मोनोसेक्राइड रेजिड्यू, मीन्स इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, नॉट द डीऑक्सीराइबोज. The second one is that RNA contains the bases adenine, guanine, cytosine and uracil instead of adenine, guanine, cytosine and thymine. इसका मतलब ये हुआ कि RNA को जो अवेलेबिलिटी होती है 4 टाइप्स ऑफ बेसिस की, वो एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल हैं, जबकि डीएनए के केस में एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की आप बात करते हैं. मोर प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो जहां पर डीएनए में थायमीन यूज़ होगा उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल यूज़ होता है. And RNA exists as a single strand instead of double strand. So in the last lecture we did discuss that DNA exists in the form of double helical strand, whereas in case of RNA you talk about only the single strand, not the double strand. So these are the differences between DNA and RNA. नाउ हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. तो आप लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था. तो दिस इज़ द सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर. ये एक ही स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर. अदर देन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल द कंपोनेंट्स. So these are the types of RNA and their function. You can go through this chart, you can pause this lecture and you can read out the content given here. I am going to talk about the 3 most important type of RNAs. तो RNA की बहुत सारी types हैं जो यहाँ पर mentioned हैं, लेकिन सबसे important है 3. The very first one that is mentioned in this list is messenger RNA, जिसको mRNA से आप represent करते हैं. It transfers genetic information from genes to ribosomes to synthesize protein. इनका काम क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से कॉपी करते हैं
और ये लेके जाते हैं राइबोसोम्स तक ताकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें. Now I'm going to talk about the third one mentioned in this list, that is transfer RNA. This is the second most important category, tRNA, that transfers amino acids to messenger RNA for protein synthesis. Basically आप इसको याद रखें कि actually not to messenger RNA, I guess to the ribosomal RNA. असल में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है राइबोसोम्स तक प्रोटीन बनाने के लिए, और फिर वो क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है राइबोसोम्स को. तो वो अमीनो एसिड्स कहाँ से कौन लेकर आता है? ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आते हैं. यानी राइबोसोम इज़ अ सेंटर, वो एक मशीनरी है, वो एक फैक्ट्री है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. उस फैक्ट्री तक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है मैसेंजर आरएनए और मटीरियल लेकर आता है ट्रांसफ़र आरएनए. एंड देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंड दिस इज़ द नंबर फोर्थ गिवन in this list, that is ribosomal RNA. और ribosomal RNA it act as actually तो ribosomes that act as a factory for the protein synthesis, वो तकरीबन उनका जो ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा हिस्सा है, वो किससे मिलकर बना होता है? ribosomal RNA से. So in this way it provides a structural framework for ribosomes and hence play an important role in the protein synthesis. You have to remember that ribosomes are the factories for the formation of protein within your cell. So these are the three most important type of RNAs that I wanted to discuss over here. Rest you can read out from this table. Now coming towards the storage of genetic information, here I am going to talk about DNA and RNA as well. आपको मैंने already explain किया है कि these nucleic acids are hereditary determinants. एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो information transfer होती है, जो genes transfer होते हैं, those are through these nucleic acids. So I am going to elaborate that particular point, that genetic information is stored within the chemical structure of DNA. The main role of DNA in the cell is a long-term storage information. The genetic information is stored within the sequence of bases along the DNA chain. आपको पता है कि DNA चेन्स जो है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. So this information flows down the DNA into RNA, which is then converted into protein. This point is very much important. पॉज करें, इसको अपने नोटबुक्स पर नोट डाउन करें कि न्यूक्लियस के अंदर जो DNA में इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को पहले RNA के अंदर, RNA टेम्पलेट के अंदर कॉपी किया जाता है उस सीक्वेंस को, और फिर वो ले जाया जाता है राइबोसोम्स तक, जो कि उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन के अंदर. इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ इस लेक्चर के अंदर. So DNA is large molecule and is therefore suitable molecule for storing genetic information but also replicate itself. ज़ाहिर है एक सेल से जब मज़ीद दो सेल्स बनते हैं ड्यूरिंग द सेल रेप्लिकेशन, तो ये DNA खुद को रेप्लिकेट करता है. The parts of DNA that carry the genetic information are called genes. You can simply say that कि DNA के अंदर जो information store होती है, it is stored in the form of genes. Now talking about the most important part of this lecture, that is nucleic acids and protein synthesis. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है. This is nucleic acid and protein synthesis. तो आप याद रखें dear students, the following three processes are involved in the duplication, transfer and use of genetic information. पहली बात तो ये है कि replication, the process by which a replica or identical copy of DNA is made when a cell divides. जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, आपकी बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स हैं वो नेचुरली डिवाइड करते रहते हैं. तो एक सेल जब आगे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है तो DNA जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है. रेप्लिका का आपको पता होगा, कॉपी को कहते हैं. ये दिस इज़ अ वेरी कॉमनली यूज टर्म. तो एक जो है DNA सीक्वेंसेस खुद को रेप्लिकेट कर लेती है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ आते हैं. तो लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, द ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मैसेज कंटेंट इन DNA आर रेड एंड कॉपीड. होता क्या है, पहले नंबर पर एप्लीकेशन की हमने बात कर ली. फिर न्यूक्लियस के अंदर जो DNA मौजूद होता है उसके अंदर जो सीक्वेंस है फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको कॉपी किया जाता है इस इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA. इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यानी ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है. वो एक जो सीक्वेंस है उसको नोट डाउन किया जाता है. एंड देन वो मैसेंजर RNA लेकर जाता है राइबोसोम्स तक मैसेज को, और उस मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी कि उसको रीड आउट करके सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है. तो दिस इज़ जस्ट अ समरी. आई एम गोइंग टू शो यू दिस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम.
जस्ट फोकस ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स। ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है, ये बहुत सिंपल डायग्राम सेल की नज़र आ रही है। सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पर शो की जा रही हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। अंदर जो आपको पर्पल कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ इंडिकेटिंग न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उस डीएनए से जब इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आपको हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मैसेंजर आरएनए का। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना दैट इज़ टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और ये एक किस्म का मैसेज है जो डीएनए से बाहर जा रहा है। तो देन दिस मैसेंजर आरएनए मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, और वो उसको लेके जाता है राइबोसोम्स तक। ये जो आपको येलो कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर रेड कलर की लाइन आपको शो की जा रही है, तो दैट येलो कलर स्ट्रक्चर इज़ राइबोसोम। और जो रेड कलर का एक स्लिट नज़र आ रही है, जो लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम्स के पास जाता है और राइबोसोम्स रीड आउट करते हैं उस सीक्वेंस को, और वहाँ से क्या बना लेते हैं, ये जो आपको बीड्स की फॉर्म में एक चीज़ बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन बनाते हैं। सो व्हेन राइबोसोम रीड आउट द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, यानी कि वो ट्रांसलेट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को जो कि डीएनए से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यू कैन ऑल्सो सी इट इन दिस डायग्राम एज वेल कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना थ्रू राइबोसोम्स, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, कुछ डिटेल्स जो है इनके बारे में यहाँ पर भी गिवन है कि ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट टू मेक आरएनए। एंड बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज आर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ज़रा इस डायग्राम को आप लोग एक दफ़ा फिर से फोकस करें, इस डायग्राम को एक दफ़ा फिर से फोकस करें, यू विल कम टू नो कि देखें जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो ये भी एक टाइप ऑफ आरएनए है। फिर ये जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स तक इस इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है तो राइबोसोम इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द राइबोसोमल आरएनए, और जब वो इसको रीड आउट कर रहा है तो जो मटीरियल चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, वो मटीरियल कौन लेकर आ रहा होगा, वो ट्रांसफ़र आरएनए लेकर आ रहा होगा। So that is the basic detail that I wanted to share with you regarding this particular topic. And then again you can read out the process of protein synthesis, that is translation over here. Basic details I have already shared with you people. So that is all for today. Thank you so much. Stay blessed, stay safe.